Okay, so we will start with question number 15th today, and this particular question appeared in 2005 exam for medical entrance. So, when a ball is thrown up vertically with a velocity v0, it reaches a maximum height of h. So आपको पहले केस में maximum height h दिया है, so I'll call this as h max 1 and h max 1 is equal to h बोला है. If one wishes to triple the maximum height, हमको मैक्सिमम हाइट को जो है वो ट्रिपल करना है, 3h करना है, right? Then the ball should be thrown with how much velocity? In first case, initial velocity was v0, and they're asking you what should be the velocity in second case, right? So I would like to know from your side कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? h max equal to u square by 2g. That means you will be using v square equal to u square minus 2gh. Why? Because it is thrown up, the object is thrown up, तो मैं इसको h लिख देता हूँ. तो v is 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे v 0 होता है. At h is equal to h max, you have v final velocity as 0. Therefore, you will get 0 equal to u square minus 2g h max. Therefore, what you will get is h max is equal to u square by 2g. Correct. हमको u2 find करना है. So what we notice from here is that h max is proportional to u square because 2g is constant. हाँ, तो फिर इसको बस solve कर लो. It is quite simple. So what you can do is u2 by u1 का square is equal to h max 2 by h max 1. This thing you have to solve. So that is h max 2 upon 1 is 3h by 3. So that is just 3. Correct. तो square root ले लेंगे फिर. And taking square root you get u2 is equal to under root of 3 times of u1, that is under root of 3 times of v0. So you have option number A. Right. तो ओवरऑल अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, we have just used equations of kinematics. There's nothing more than this. So if you want to note it down, you can do it. So if you know that maximum height is proportional to u square, आपको ये क्वेश्चन ओरली भी सॉल्व हो सकता है because maximum height is proportional to u square मतलब u2 by u1 square is h2 by h1 and that's it. So this is how you will solve this question. Okay, so let's move to next question. So in the next question, what they are asking us is two spheres of same size, one of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped simultaneously from Qutub Minar, from the top of Qutub Minar. When they are 1 meter above the ground, the two spheres have same what? देखो, first of all you need to understand कि इन दो cases में acceleration due to gravity will be same on both the objects. Correct. What will not be same over here? So the two spheres have same what? Momentum. What is momentum by the way? mv. तो mass अलग अलग है, तो we don't expect that momentum will be same. Correct. तो मोमेंटम तो सेम होगा नहीं. काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे भी मास आ गया. पोटेंशियल एनर्जी भी mgh होता है. So there's only one thing which is independent of mass and that is acceleration. So only this thing will be same. तो easy question था. 17th, three different objects of masses m1, m2 and m3 are allowed to fall. They are allowed to fall
from the point O along three different frictionless paths, the speed of the three objects on reaching the ground will be in the ratio. How do you solve this question? There are three objects, M1, M2, M3 masses hai. They are allowed to fall from rest, okay, along three different frictionless paths. मतलब मान लो ऐसा एक plane है हमारे पास. So let us say we have a plane surface. So this is a plane surface, let us say, और यहाँ से object friction without friction fall हो रहा है. One can go in this path. अभी ऐसा है कि मैं one dimension में दिखा रहा हूँ, so you will not be able to imagine. So let me draw it as a plane basically. तो समझेगा. So मान लो ऐसा plane है. Okay, and you have three different objects. M1 mass, M2 mass, and M3 mass. They are all coming down the same plane without friction, right? So the speed of the three objects on reaching the ground will be in the ratio. Why same? Under root G, 2Gh. Exactly, because V square equal to U square plus 2GH होगा, because the kinematic equation tells us that this is the formula for final speed. और इनिशियल स्पीड कितना होता है 0, क्योंकि दे हैव टोल्ड यू फ्रॉम रेस्ट, तीनों के लिए रेस्ट, तो 2GH है ना, तो V इज अंडर रूट ऑफ 2GH, तो फाइनल स्पीड हियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. हाँ, तो फिर 1:1:1. सिंपल क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन था. V डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो तीनों के लिए सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. From the top of a tower, a particle is thrown vertically downwards with a velocity of 10 meters per second. The ratio of the distances covered by it in the third and second of its motion is. Yes. How do you solve this question? Anyone? Formula, right? Formula, but हाँ, तो सबसे पहले हमको इनिशियल स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड इज u प्लस a/2 2n-1, करेक्ट. तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू क्या आएगा, u मतलब 10 प्लस a इज g एंड g इज 10 अगेन, है ना, तो 10/2 2 into 3 minus 1, करेक्ट. S2 तो मैं यहीं पे डिवाइड करके रख देता हूं बिकॉज दे आर आस्किंग अस रेशो, तो ये आएगा 10 plus 10/2 2 into 2 minus 1, तो S3/S2 will be equal to 10 plus 5 and this is 6 minus 1 is 5, तो 5 into 5 मतलब that is 25 basically upon 10 plus 5 and this is 3. तो ये आपका आ गया 10 plus 25 is 35 and 10 plus 15 is 25, 7/5, 7:5 is the ratio, right? कहाँ पे 10/2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बोल रहे हो आप. हाउ कैन यू कैंसल, अगर यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया होता ना तो हम लोग ये नहीं लिखते, फिर ठीक है, यू आर एडिंग समथिंग देयर. यू कैनॉट कैन यू डू दिस a plus b upon c plus b, b भी कैंसिल कर सकते हो क्या. हाँ, तो फिर वहां पे कैसे कैंसिल कर रहे हो, यू कैन नॉट डू दैट, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है वो. सर अगर आपने h का लिखा था तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर किया था, तो वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं h इज प्रोपोर्शनल टू एग्जैक्टली h इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. जब मैंने लिखा था इट वाज अंडर सर्टेन कंडीशंस. क्या कंडीशन थी, फाइनल वेलोसिटी इज 0 एट मैक्सिमम हाइट. हमारे पास इक्वेशन क्या आया था उस एग्जांपल में, सो आई टेक यू बैक टू दैट पर्टिकुलर एग्जांपल, दिस वन, राइट. इफ यू सी एक्चुअल इक्वेशन ये है, और अगर इससे भी एक स्टेप आगे जाओगे तो एक्चुअल इक्वेशन है v² = u² + 2as.
हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी। क्यों 0 होना चाहिए? द पार्टिकल हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड कम बैक, नीचे आएगा वापस। तो उस केस में v 0 होगा, राइट। v 0 हुआ इसलिए हम ऐसा लिख पाए h max इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, और क्योंकि हमने ऐसा लिखा है और g कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई h max इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, इट इज ओनली फॉर मैक्सिमम हाइट, बाकी कहीं पे नहीं चलेगा ये। क्लियर, राइट? ओके, so that is why you don't have to get confused between this kind of proportionalities. तो ये आ गया आपका 7:5। किसको नोट डाउन करना है कुछ? Do you want to note it down? नहीं? Good. Next question. A ball is thrown vertically upwards. वापस से vertically upward मतलब -3 होगा. Which of the following plot represents the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is ignored? Which of the following graph is true for speed time? Speed time है, velocity time नहीं है. Remember, velocity time नहीं है, ये speed time graph है. C. Why C? Can you give me a specific explanation for this? हम स्टार्टिंग को अपवर्ड पे So yes. तो फिर उसकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, u इज नॉट Yes, correct. और फिर अपवर्ड जाके पर्टिकुलर हाइट पे वो स्टॉप होगा, एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी इज 0। Exactly. और फिर बाद में ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जाएगा। Okay. Right. So what he is saying is, हमको अगर सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है तो इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसलिए उस केस में स्पीड जो है वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, सो दिस पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स एच मैक्स, बट वी आर प्लॉटिंग टाइम एक्सिस, तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ओके, सो ए पॉइंट इन टाइम मतलब ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, तो ये टाइम हो गया, ये स्पीड था, करेक्ट। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उसके बाद क्या होगा? स्टॉप होगा एंड देन इट विल कम डाउन। कम डाउन मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा, राइट। हाँ, तो उसका स्पीड बढ़ेगा इन द सेम वे। इन द सेम वे मतलब जैसे कम हुआ था वैसा ही बढ़ेगा। क्यों वैसे ही बढ़ेगा? ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी अलग से बिहेव करेगा और नीचे आते हुए अलग से बिहेव करेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली, और स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? कैन यू टेल मी एन इक्वेशन व्हिच proves that these two lines has to be straight line? V is equal to U plus AT, correct, right? तो यही तो है, दिस इज V minus U equal to AT, ओके। स्पीड है ना, स्पीड मतलब अभी V minus U मतलब स्पीड, y एक्सिस पे स्पीड है, x एक्सिस पे, ठीक है, मैं थोड़ा और मैथमेटिकल डिटेल में जाता हूं। y एक्सिस पे स्पीड है ना, y, x एक्सिस पे टाइम है, a मतलब स्लोप है, प्लस सम कांस्टेंट मतलब इनिशियल वैल्यू y इंटरसेप्ट। हाँ, तो ये तुम्हारा इनिशियल वैल्यू u, तो y इक्वल टू mx प्लस c, करेक्ट, बट हियर विद अ नेगेटिव स्लोप। क्यों नेगेटिव स्लोप? बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग इनिशियली, राइट। तो ये जो लाइन है आपका, दिस इज y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। मॉड्यूल्स दिए हैं, अगर पढ़ा होगा देखा होगा तो उसमें ये भी दिया है मैंने, बाय द वे मैं बताता हूँ। यस, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्लस सी नहीं, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। क्यों माइनस सी? क्योंकि जब इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो y इंटरसेप्ट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव। इन एनी केस वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस एट दिस मोमेंट, हमको पता सिर्फ होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, you need to know what are the slopes of this line. What is the slope of this line parallel to x-axis? What is the slope of line parallel to x-axis? 0. Q angle 0, tan 0 is 0. What is the slope of
line parallel to y axis? Infinity. So you have understood मैं क्या बोल रहा हूँ. Slope is infinity here and slope is 0 here. मतलब मैं अगर horizontal से line को vertical ले जा रहा हूँ, if I am if it is 0 slope, मैं इसको अगर ऊपर ले जा रहा हूँ vertical, तो slope will go on increasing. इसको बोलते हैं you're going up the hill. ऐसा याद रखते हैं. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. Up the hill is positive slope. Clear? Up the hill is positive slope. अगर मैं नीचे ले जाता लाइन को तो नेगेटिव. डाउन द हिल इज नेगेटिव स्लोप. तो यहाँ पे स्लोप इस लाइन के लिए नेगेटिव आएगा, मैंने माइनस लिखा है, राइट. इसके लिए पॉजिटिव आएगा, मैंने प्लस लिखा है. यस. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो एज रिक्वायर्ड बेसिक मैथमेटिक्स. ओके. इन एनी केस हमको इतना पता होने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए. तो इस क्वेश्चन के लिए स्ट्रेट अवे ऑप्शन नंबर सी था. गुड. देन we are done with all the questions that were asked in previous NEET exams, but I am taking few questions which were asked in JEE exams because I want you to have little bit of mathematical background. तो थोड़ा सा mathematical touch देंगे हम उसको. पहला question, an automobile traveling with a speed of 60 km per hour can brake to stop within a distance of 20 meter. By the way, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई किया, कुछ डिस्टेंस के बाद आपकी गाड़ी रुक जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस. The time or the distance, not in terms of time, the distance that a vehicle needs to stop after braking is called as stopping distance. Okay. If the car is going twice as fast, पहले 60 km per hour था, हमने ब्रेक अप्लाई किया, 20 मीटर के बाद गाड़ी रुक गई. अब 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. व्हिच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग हियर? व्हाट डू वी नो? देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं. क्या क्या पता है हमको? 60 किलोमीटर पर आवर इट इज इनिशियल स्पीड. यस. उसके बाद 20 मीटर डिस्टेंस. फाइनल स्पीड क्या आएगा? 0. तो v, u और s का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा? v square. So you will be using v square equal to u square minus 2as because retardation, right? Okay. V is 0 in both cases, right? Since the car is stopping, so in that case you have v equal to 0. मतलब अब आप लिख सकते हो 0 equal to u square minus 2as. इसका मतलब आप लिख सकते हो u square equal to 2as. मतलब you can write down u square is proportional to s. From next time ऐसा क्वेश्चन आया तो u square is proportional to s. If you are talking about stopping distance u square is proportional to s. तो हमको क्या चाहिए? s2 चाहिए. तो s2 by s1 equal to u2 square by u1 square. तो s2 is equal to u2 कितना है? 120. यहाँ पे यूनिट्स कन्वर्ट एसआई में लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो ले रहे हो तो कैंसिल होगा. अपॉन 60 इसका स्क्वायर करना भूलना नहीं, इनटू s1. एंड हाउ मच इज s1? 20 मीटर. तो ये आएगा 1 जा 2 जा 2 स्क्वायर इज 4. 4 into 20 is 80 मीटर. तो 80 मीटर, राइट? इफ यू वांट टू नोट इट डाउन. नो? गुड. फिजिक्स इजी है. इट इज वेरी सिंपल. यू नीड टू थिंक. हाँ, अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा. Speed of two identical cars are u and for u at a specific instant. The ratio of their respective distances in which the two cars can be stopped from that instant 1/16. वही फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला था? s is directly proportional to, तो s1 by s2 is equal to
u2 by u1 by u2 square, u1 by u2 whole square. What is u1 by u2 by the way? u upon 4u square, ये 4 है. I need to change little bit of fonts. ये 4 है तो ये आएगा आपका 1 by 16. खत्म. राइट. This is interesting. A particle has initial velocity of 3 I cap plus 4 j cap and acceleration of 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds is. How do you solve this question? क्या दिया है आपको? Yes, but what is given in this case? U bar दिया है, initial velocity in vector form दिया है, और क्या दिया है? Acceleration in vector form दिया है. तो फाइनल वेलोसिटी निकालते वक्त वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा. मतलब यू विल हैव टू यूज b बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t. यहाँ पे डॉट नहीं लिखना. You cannot have a dot product between one scalar and one vector. Good. So u bar is 3 I cap plus 4j cap plus a bar is 0.4 I cap plus 0.3 j cap and t is 10 seconds. Just a minute. Wait. So 3 I cap plus 4 j cap plus 0.4 into 10, 4 I cap plus 0.3 into 10 is 3 j cap. How much is this? 7 I cap plus 7 j cap. ये आ गया फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म. उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? x component square. What is x component in this case and y component in this case? 7 and 7. तो 7 square plus 7 square मतलब 2 times of 7 square under root of 2 times of 7 square मतलब ये आएगा 7 root 2. So 7 root 2 units. सिंपल क्वेश्चन था, राइट? Then okay, a small block slides without friction down an inclined plane starting from rest. Let Sn be the distance traveled from time n minus 1 to time n. Then Sn by Sn plus 1 s. करो तो solve. I want you to solve this and tell me. This is a joke if well understood. Q. What is the distance traveled in nth second? U plus a by 2 to n minus 1. U is 0 because आपको बोला है a small block slides. Okay, ये important है और नहीं भी है. क्यों नहीं है और क्यों important है समझेगा आपको. Anyways, so let me draw it this way. Okay, right. अब मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है which is sliding without friction. Do you know what is A in this case? नहीं, G sin theta. mg sin theta is force. I am talking about A equal to G sin theta या G cos theta. Sin या cos. चलो जो भी होगा वो हम वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, डिटेल में करेंगे, इन डिटेल करेंगे. बट द आइडिया इज u0 है तो Sn is equal to a by 2 2n minus 1. इन एनी केस g sin थीटा हो g cos थीटा हो हम देखेंगे. इन एनी केस वो तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, और एक नहीं भी होता तो भी g sin थीटा या g cos थीटा आता. तो किस पे डिपेंड करता है? g पे और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे. g भी कांस्टेंट
थीटा भी कांस्टेंट, मैंने 10 ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ दिए, 10 के 10 के लिए सेम आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये ए भी कांस्टेंट है, राइट? और यहाँ पे तो हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो व्हाट वी हैव इज Sn इज प्रोपोर्शनल टू 2n minus 1, तो Sn plus 1 will be proportional to 2n plus 1 minus 1, मतलब Sn plus 1 will be proportional to 2n plus 2 minus 1, मतलब 2n plus 1। हाँ, तो रेशो ले लेंगे तो फिर क्या आएगा? रेशो ले लोगे तो इट इज वेरी सिंपल थिंग, 2n minus 1 upon 2n plus 1, सिंपल, बहुत सिंपल है ये, राइट? ऑप्शन नंबर सी। व्हाई आई सेड इफ इट इज अ जोक इफ वेल अंडरस्टूड। द थिंग इज, आपको Sn और Sn प्लस 1 का रेशो पूछा था। अब Sn में 2n minus 1 आता है, तो न्यूमरेटर में 2n minus 1 आना चाहिए। नीचे क्या है? Sn प्लस 1, तो नीचे 2n प्लस समथिंग आएगा, राइट? तो एक ही ऑप्शन है। अगर ऐसा होता Sn अपॉन Sn माइनस 1, Sn अपॉन Sn माइनस 1 twice n minus 3 माइनस 2, तो यहाँ पे सिर्फ ये नीचे जो है ये -2 आता और ऊपर जो है ये -1 आता, राइट? तो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चन, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। मैंने कल एक क्वेश्चन लिया था जिसमें 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बुलेट का स्पीड 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ था, एंड आई टोल्ड यू कि ऐसा क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। तो दिस इज अगेन द सेम थिंग। A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. What does that mean? That means we have a block. हमारे पास एक ब्लॉक है, इसमें हमने एक बुलेट को फायर कर दिया, 3 सेंटीमीटर के बाद, मतलब लेट अस से S1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के बाद, अगर यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल u था तो यहाँ पे हो जाएगा u बाई 2, राइट? तो मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू u बाई 2 और सेकेंड केस का फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0। गुड, राइट? तो सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस 1 I will write down it as cases. Initial velocity is u, final velocity is u by 2, distance traveled is 3 centimeter, right? Good. In case 2, initial velocity in case 2 is final of case 1, that is u by 2, and final velocity of case 2 is 0. And how much is the distance traveled? This is what they are asking you. Which formula will you be using? V square equal to u square plus twice as. So if I apply v1 square equal to u1 square plus twice a1 s1, तो यहां से मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। ओके, फाइन। तो फ्रॉम हियर आई कैन हैव वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, मतलब a1 is equal to v1 square minus u1 square upon 2 times of s1, राइट? और ये a1 की वैल्यू मैं यहाँ पे केस 2 में भी यूज कर सकता हूं। Why can we use a1 in also in case 2? Why can we use the same retardation value in case 2? बुलेट किसके अंदर था पहले केस में, दूसरे केस में? हाँ, जब मटेरियल सेम है तो रिटार्डेशन यूनिफॉर्म होता है, करेक्ट? हाँ,
तो ये आपको सॉल्व करना है. दिस इज सिंपल. हाउ मच विल दिस बी? कैन यू टेल मी ओरली? बिकॉज दिस इज ओरल. हाउ कैन दिस, हाउ मच विल बी दिस? इजी है ना. v1 u, v1 is u by 2 उसका स्क्वायर, u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर, 1 बाय 4 में से 1 गया, माइनस 3 बाय 4, है ना. करेक्ट. बराबर. 3 बाई 4 यू स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ नीचे डिनोमिनेटर में 3, तो ऊपर 3 बाई 4 यू स्क्वायर, नीचे 6. हाउ मच? 6/4. अरे ऐसा कैसे कैलकुलेट करते हो? वेट, डोंट राइट, डू नॉट राइट, डू नॉट राइट एनीथिंग. लिसन टू मी. फाइनल वेलोसिटी u बाई 2, उसका स्क्वायर कितना हुआ? u स्क्वायर बाय 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, 1 बाय 4 में से 1 गया, माइनस 3 बाय 4 u स्क्वायर आ गया ऊपर. नीचे क्या है? 2 इंटू 3 कितना? 6. करेक्ट. 3 बाई 4 ऊपर, नीचे 6. 3 1 जा, 3 2 जा, 4 2 जा 8 माइनस यू स्क्वायर बाय 8. करेक्ट. गुड. देन ये a1 की वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है विद नेगेटिव साइन. और सेकेंड केस में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना? सेकेंड केस का u बाई 2 उसका स्क्वायर, u स्क्वायर बाई 4, है ना. तो ये u स्क्वायर है बाई 4 माइनस 2, क्योंकि a2 माइनस है, u स्क्वायर बाई 8. s2 फाइंड ही करना है, 1 जा 4 जा, बराबर. हाँ, तो s2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो है क्या 1 सेंटीमीटर? ओके. So this is how you solve this question. If you want to note it down, okay, so let's move to next question. A particle located at x equal to 0 at t equal to 0, मतलब initially origin पे था, start moving along positive x direction with a velocity which varies as v is equal to alpha root x. The displacement of the particle varies with time as. This is a joke. Why a joke? You will understand in a while. What is v? dx by dt is equal to alpha x raised to half. मैंने आपको बताया था कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो dx अपॉन x रेज टू हाफ इक्वल टू अल्फा dt. एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो यू हैव टू इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता है, डोंट वरी, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, जस्ट फ्यू फॉर्मूलाज. एक्स रेज टू हाफ नीचे है, ऊपर लेके गया तो एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स. अल्फा कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ही रख दिया. करेक्ट. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू n? n plus 1 upon n plus 1. x रेज टू n प्लस 1, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो x रेज टू n, हमारे केस में n क्या है? हाफ, प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इक्वल टू अल्फा t, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t, राइट, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच वी डोंट केयर. करेक्ट. तो मैं इसको नहीं लिखूंगा बिकॉज वी डोंट केयर. हमको वैल्यूज नहीं पूछी है, दे आर जस्ट सेइंग इट इज प्रोपोर्शनल टू. ओके. सो x रेज टू हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू अल्फा t. तो x रेज टू हाफ इक्वल टू हाफ अल्फा t. तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो x इज सम कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर बाई 4 t स्क्वायर. तो x वेरीज एज t स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी.
इसको ओरली कैसे सॉल्व करते हैं? अगर v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आया, तो उस केस में अगर x पूछा होगा तो x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. सिंपल. इफ v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x, है क्या? v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x. और आपको रिलेशन किसका पूछा है? x और t का. हाँ, तो x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. इफ v इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू 3/2, लेट अस मेक सम रूल्स. पहले क्या था? v इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू हाफ. अभी मैं बोल रहा हूँ v इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू 3/2. तो क्या आएगा रिलेशन बिटवीन x एंड t? लुक हियर, डोंट डू एनीथिंग. वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है. चेंज कहाँ होगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, बराबर? करेक्ट है ना? व्हाट इज -3/2 + 1? -3/2 + 1 माइनस हाफ. माइनस माइनस माइनस, करेक्ट. देन स्क्वायरिंग. स्क्वायर करोगे ना इसको. स्क्वायर करोगे तो ये सिर्फ -1 आएगा. मतलब 1/x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू -2. Correct? Good. Then I will give you an assignment for today. In general, if I say in general, v is proportional to x raised to n/2. n can be 1, 3, 5, 7, मतलब odd multiple. Huh? Correct? So what is the relation between x and t in terms of n? ये आपको सॉल्व करना है. जैसे कि चलो बता ही देता हूं मैं. I will have to tell you, I don't know. Okay, so what I am saying is, मैं ये बोल रहा हूं आपको that in general, if v is proportional to या फिर v is equal to some constant x raised to n/2 ऐसा आया, तो dv is dx by dt equal to alpha x raised to n/2. तो ये x raised to -n/2 dx equal to alpha dt आने वाला है. करेक्ट? क्लियर? देन यू इंटीग्रेट. Integrating on both sides, then you will have, what will you have? X raised to -n/2 plus 1 upon -n/2 plus 1 equal to alpha t. कांस्टेंट मैंने लिख रहा हूं. क्लियर? राइट. तो what is -n/2 plus 1? 2 - n/2 है ना. 1 - n/2, तो ये आएगा 2 - n/2. गुड. करेक्ट. तो I will have a formula which tells me that x raised to 2 - n/2 is equal to alpha. मैं अल्फा और ये कांस्टेंट है. I am not worried about this. Okay, I don't care for what are constants. Constants are constant, proportional to t. अभी अगर मुझे इस फैक्टर को यहां से हटाना है तो इसका रेसिप्रोकल मैं पावर में लिखता हूं. ऐसा ही करते हैं ना हम लोग. जब आपको x रेज टू हाफ स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करते हो? स्क्वायर लिखते हो. मतलब जो 1/2 है उसका रेसिप्रोकल पावर में लिखते हो. 1/3 हटाना है तो फिर क्यूब लेते हो. हाँ, तो फिर बस वही कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो ये क्या आएगा? t रेज टू 2/2 माइनस n. करेक्ट. मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 2/2 माइनस n. बराबर? करेक्ट. अब हमारा क्वेश्चन कंपेयर करो. हमारे पास n की वैल्यू क्या थी पिछले क्वेश्चन में? हाफ था, है ना. रूट x था, मतलब x रेज टू हाफ, मतलब n की वैल्यू क्या थी? 1. n की वैल्यू 1 थी, हाफ नहीं थी. n की वैल्यू कितनी थी? 1. राइट? करेक्ट. तो प्रोपोर्शनल टू t 2/2 - 1, मतलब प्रोपोर्शनल टू t
मैजिक यू हैव अ शॉर्टकट, बट प्रोवाइडेड वहां पे n/2 लिखा है, हाफ को n नहीं बोला आपने, राइट? तो ऐसे शॉर्टकट से भी आप बना सकते हो। तो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस, and you will notice this particular trick is useful at many places, maybe in this question also. Question number 10. An object moving with a speed of 6.25 meter per second is deaccelerated at a rate given by dv by dt equal to minus 2.5 root of v, where v is instantaneous speed. The time taken by object to come to rest would be how much? Time taken. Can you connect dx by dt is equal to alpha root x? इसका सॉल्यूशन क्या आया था? x proportional to t square. ये dv by dt इक्वल टू माइनस 2.5 रूट v, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बराबर, करेक्ट। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी हाउ मच? तो बिकॉज डू यू नोटिस समथिंग हियर? थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल हो रहा है तो मैं सिंपल कर देता हूँ। पहले हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो नॉर्मल मेथड तो यही है कि आपके पास dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2.5 अंडर रूट ऑफ v, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। आपको ये देखना है कि हाउ मच इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, तो यू हैव टू बेसिकली इंटीग्रेट करोगे, मतलब ये वापस से वही आएगा dv v रेस टू माइनस हाफ। समझा कैसे है v रेस टू माइनस हाफ? समझा कि नहीं? ये रूट v को मैं यहाँ पे लाया डिनोमिनेटर में, मतलब v रेस टू हाफ, ऊपर जाके v रेस टू माइनस हाफ, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2.5 टाइम्स ऑफ dt। फिर हम क्या करते हैं बाद में? इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन करेंगे v रेस टू माइनस हाफ dv इक्वल टू माइनस 2.5 इंटीग्रेशन dt। मैंने इसको ऑलरेडी बताया कि दिस इज known to you, this should be known to you. Then what is the integration of v raised to minus half upon half? V raised to half upon half equal to minus 2.5 dt, right? But wait a minute, aren't we missing something? Limits. क्या बोला है? Object moving at a speed of 6.25, it has to come to rest, मतलब इनिशियल स्पीड कितना? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनिशियल स्पीड टू फाइनल स्पीड, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन पे लिमिट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट? तो ये हाफ जो है 1/2 जो है, ये मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, ये 2 कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v रेज टू हाफ, v की जगह पे 0 डाला, 0 रेज टू हाफ इज हाउ मच? हाउ मच इज 0 रेज टू हाफ? 0। 6.25 रेज टू हाफ, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, वो करेंगे सॉल्व हम लोग, इज इक्वल टू माइनस 2.5 जस्ट टी। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिकॉज दिस इज 2, दिस इज माइनस 2.5, राइट? दिस इज इक्वल टू माइनस 2.5 टाइम्स ऑफ टी, करेक्ट? मतलब माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2.5 टाइम्स ऑफ टी, मतलब टी इज इक्वल टू 2 seconds, right? We have less than a minute to solve a question. Can we afford to do all this integration? Of course not. We cannot put so much of time. तो थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचोगे, जैसे मैंने आपको ट्रिक बना के दिया, वैसा अगर आपको याद होता तो इट वाज ऑलमोस्ट सॉल्व्ड। पावर n in terms of n, okay?
तो better I will not go into mathematical trick, maybe sometimes later. बहुत सारा पढ़ना है तो हम देखेंगे ऐसे इंटीग्रेशन और इंक्लूड करेंगे. For the time being you have to solve this way. Okay, but yes, a trick exists. होता है, trick रहता है, तो you can solve. Anyone wants to note it down? Okay. Next question. Very good. Okay, so here also we need mathematics. So this question asks us the relation between time and distance. टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर. अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट. द रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. और आपको पता है डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को 2 बार डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि पहले बार लोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार लोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, राइट. तो हाउ डू वी डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, if I directly differentiate, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा? इफ आई डिफरेंशिएट फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट यू विल हैव इज dt by dt on the left hand side, alpha constant. What is the derivative of x square? x raised to 3 by 3. 2x. डेरिवेटिव 2x. आपने इंटीग्रेशन बताया, आपने आधा सच बताया. 2x करेक्ट. 2x plus d by dx of x. 2x to minus 1. 2x dx by dt. f of x raised to n का डेरिवेटिव होता है n into f of x raised to n minus 1 d of f of x by dx, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ना. तो प्लस बीटा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t. तो ये भूलना नहीं, ऐसा लिखना पड़ेगा. देन dt by dt is 1 2 अल्फा x प्लस बीटा, क्योंकि मैं यहां से dx by dt को कॉमन निकालने वाला हूं. फिर मुझे मिलेगा dx by dt is equal to 1 upon 2 times of alpha x plus beta. What is, by the way, dx by dt? Is it velocity? So velocity is 1 upon 2 alpha x plus beta. इसको सिर्फ बाद में यूज करने के लिए मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1. गुड. नाउ okay, right. Just a minute. Anyways, I need to learn how to use this. पता नहीं मूव कैसे होता है. Anyways, forget about it. I just needed some space and I have space. तो ये जो dx by dt है, इसको और एक बार डेरिवेटिव लेंगे. Why? To get acceleration. तो if I differentiate again, तो d dt of dx by dt, d dt of ये जो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है ना, ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू -1 लिख देंगे. करेक्ट. सो दिस विल बी d2 x by dt square, right, is equal to what is f of x raised to n का डेरिवेटिव अगेन? f of x raised to n का डेरिवेटिव n मतलब -1 into f of x raised to n minus 1. n ऑलरेडी -1 और एक -1. रूल, जिसको रूल नहीं पता, f of
x रेज टू n का डेरिवेटिव, करेक्ट, with respect to t. It is n f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. Clear? Is it clear? फिलहाल कुछ मत लिखो. Why? Because there is something that we need to change. बताऊंगा क्या. फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान दो. Okay. ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. हाँ, बाय द वे ये आधा छोड़ दिया मैंने. तो डेरिवेटिव ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन डी टी है ना, वो रूल. n मतलब -1, f ऑफ x मतलब 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये f ऑफ x है. n माइनस वन माइनस वन माइनस वन, क्योंकि n माइनस वन था, इनटू डेरिवेटिव f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव भी ले लिया हमने. गुड, करेक्ट. समझे यहाँ तक? -1, ये -1 और -1 कितना, -2, ये जाएगा कहाँ पे, नीचे. 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, करेक्ट. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 अल्फा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू t? 2 अल्फा, बीटा का डेरिवेटिव 0, बीटा कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स बाई डी टी. 2 अल्फा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आता है, 2 अल्फा इंटू डी एक्स बाई डी टी. मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है क्या, होता है ना वेलोसिटी, करेक्ट. समझा यहाँ तक? मैं वापस करवाऊंगा ये बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग. बाय द वे 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या था, v. तो ये क्या आ गया आपका v स्क्वायर, है ना, माइनस, बराबर ना, v स्क्वायर, करेक्ट. तो ये आ गया माइनस v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा v, मतलब ये आ गया आपका -2 अल्फा v क्यूब. है क्या 2 अल्फा v क्यूब विथ नेगेटिव साइन? ऑप्शन नंबर ए. इसमें एक मेथड थोड़ा चेंज हो सकता है बट डजंट मेक मच डिफरेंस. वो सिर्फ चेन रूल अप्लाई कर देते हैं, तो आई डोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ हियर. तो मैं ये क्वेश्चन एक बार वापस बताने वाला हूं बिकॉज आई वांट यू टू नो मैथमेटिक्स प्रॉपरली एंड यू आर सपोज टू नो दिस, पता होना चाहिए. मैं क्वेश्चन वापस बता रहा हूं एंड आई नीड टू गो बैक टू द नॉर्मल Zoom mode, right? So let me put partitions first so as to manage some space. We need space. Okay, that's it. तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से किया था, t is equal to अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. फिर हमने बोला डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, then dt by dt is equal to d dt of right hand side, and right hand side is alpha x square plus beta x. Then dt by dt is 1, alpha is constant, x square का डेरिवेटिव 2x होता है, और आप लिखते हो dx by dx अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो तो, राइट. आप लिखते हो dx by dt if it is with respect to t, और बोला भी है t और x में रिलेशन है, लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0. x कांस्टेंट है क्या, नहीं. क्यों नहीं, वो इक्वेशन नहीं बोला है ना, t और x में रिलेशन है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो दे आर नॉट कांस्टेंट्स. प्लस प्लस सेकेंड टर्म में क्या आएगा, बीटा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dx by dt, बराबर. सो ये आपका आ गया dx by dt, dx by dt, करेक्ट. तो 1 इक्वल टू 2 अल्फा
एक्स प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी मैंने निकाल लिया कॉमन, तो मुझे मिल गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, बट डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी। करेक्ट। अब इसके आगे आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो जो मैंने पहले बताया, वो भी सही है, टू टेक सेकेंड डेरिवेटिव। या फिर अदरवाइज अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप बोल सकते हो व्हाट वी नो इज ए एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, है ना, बराबर। सिर्फ मैंने dv और dt को सेपरेट किया, क्यों? क्योंकि v और t में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्या? दिख रहा है क्या? v में t दिखता है क्या कहीं पे? नहीं। v इज रिलेटेड टू x बट x इज रिलेटेड टू t, तो इसलिए हम इसको चेन रूल बोलते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि चलो dx एडजस्ट कर लिए। क्यों किया? बिकॉज v इज रिलेटेड टू x एंड x इज रिलेटेड टू t, तो ऐसा भी चलेगा। इसमें सिर्फ फायदा ये होता है कि एक स्टेप हमारी कम होती है। कैसे? dx बाई dt ऑलरेडी पता है ना, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये मैं लिख सकता हूं dv बाई dx इंटू v। अब आपको क्या करना है? a इज इक्वल टू v जो ऑलरेडी था, d dx ऑफ v, व्हाट इज v? 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, तो यह आएगा a इज इक्वल टू v d dx ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -1। इसका डेरिवेटिव आएगा v -1 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -1 that is -2 into derivative of 2 अल्फा x प्लस बीटा। फिर ये आपका आएगा a इज इक्वल टू v विथ अ नेगेटिव साइन 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -2 इज v स्क्वायर, वो v स्क्वायर है ना, क्योंकि v क्या है? 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -1 फ्रॉम हियर, करेक्ट। तो ये आएगा आपका v स्क्वायर, और बचा क्या? 2 अल्फा x प्लस बीटा का डेरिवेटिव। व्हाट इज 2 अल्फा x का डेरिवेटिव? 2 अल्फा, और हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं अभी, तो dx बाई dx कितना हो गया? 1, और बीटा का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0, क्योंकि बीटा कांस्टेंट था। तो आपको फाइनली मिल जाएगा -2 अल्फा v क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? So if you want to write down, you can do it now. Next question, and interesting, good, simple question है, oral question है basically. A particle starts from origin at time t equal to 0 and moves along the positive x-axis. The graph of velocity with respect to time is shown in figure. What is the position of particle at x equal to 5? मतलब बेसिकली आपको पूछा है what is the position at x equal to 5 means they are asking you what is the area under the curve up to this red line, है ना? कैसे निकालोगे area under the curve up to this red line? yes, तो ओरल क्वेश्चन है, मतलब पहले इस ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस भी 2 हाइट भी 2 है ना, हाफ 2 into 2 तो 2। उसके बाद एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल है बेसिकली, 4 नहीं व्हाट डिड यू से? 4, हाँ 2 into 2 राइट, 2 into 2 कितना आ गया ये? 2 प्लस प्लस ना, इसका 2, ट्राइंगल का 2, इसका 4, 6। उसके बाद ये रेक्टेंगल 1 into 3 कितना हो गया? 2 + 4 + 3 कितना हो गया? 9 है क्या ऑप्शन में? 9 बी। हो गया क्वेश्चन खत्म। राइट, सो दिस इज हाउ सच क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। सो आपको पोजीशन बोला है, व्हाट इज द पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पोजीशन से आता है डिस्प्लेसमेंट।
अगर इस केस में आपको डिस्टेंस कवर्ड बोला होता तो सेम। क्यों सेम? क्यों सेम? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हुआ ही नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कब आता है? जब साइन का तो डिफरेंस है, बट जब बेसिकली वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव ना। याद होगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था ना हमने, इफ यू रिमेम्बर। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे एक एरिया आपका नेगेटिव आया था, ऐसा था, या फिर आई थिंक समथिंग लाइक दिस था वो, ऐसा कुछ था। तो जब वेलोसिटी नेगेटिव हो तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग आता है। जब टाइम एक्सिस के मतलब बेसिकली जब एक्स एक्सिस के ऊपर ही सब चल रहा है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा है, ये है, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे आर इक्वल। क्लियर? हाँ, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the position of particle as a function of time is given by x equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b, c are constants. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be 2019 का JEE का क्वेश्चन है। सबसे पहले, how do you solve this question? Can you tell me what will be the method of solving this question? x दिया है, x as a function of time is at plus bt square minus ct cube. When the particle attains zero acceleration, मतलब पहले एक्सेलरेशन निकालो, इक्वल टू जीरो करो, वहां से टाइम मिल जाएगा, उस टाइम की वैल्यू को v के इक्वेशन में डालो तो वेलोसिटी मिलेगी। करेक्ट? तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ x टू फाइंड आउट वेलोसिटी। व्हाट इज डेरिवेटिव ओरली? a plus 2bt minus 3ct square स्क्वायर, डेरिवेटिव का रूल। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, a कांस्टेंट था, b कांस्टेंट था बाहर, t स्क्वायर का 2t, c कांस्टेंट था बाहर और t क्यूब का 3t स्क्वायर। ये हमको काम में आने वाला है। अब जब मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा तो मैं और एक बार डेरिवेटिव लूंगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्विक? a का डेरिवेटिव 0, 2bt का डेरिवेटिव 2b, माइनस 3ct का डेरिवेटिव माइनस 3c, कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t आता है, तो माइनस 6ct होगा वो, है ना, माइनस 6ct। बट उन्होंने बोला है व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो 2b माइनस 6ct इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 2b बाय 6c, मतलब b बाय 3c। अब ये b by 3c की वैल्यू यू हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड आउट v। So this is, let us say, equation number 2. So put equation number 2 in 1 and simplify. तो ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इजी है, सिंप्लीफिकेशन इजी है यहाँ पे क्योंकि हो जाता है सिंप्लीफाई ये। तो v इज इक्वल टू a की जगह पे a, 2b, t is b by 3c, minus 3c t square is b square by 9c square। 1 जा, देखो क्या है, 1 जा 3 जा, ये c और ये c भी कैंसिल, तो b by 3c, b square by 3c, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ये v इज इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस माइनस b स्क्वायर बाई 3c, नीचे गया वो। I am running out of space. I want some space. Everyone wants space over here. So v is equal to a plus 2b square by 3c minus b square by 3c. What is 2 minus 1? Plus 1. हाँ, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका फाइनली? a plus b square by 3c है क्या? a plus b square by, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन was very simple. X
से आपको v मिला, v से आपको a मिला, a को इक्वल टू 0 किया, वहां से t मिला और वो t उठा के v के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, सिंपलीफाई किया है. दिस इज हाउ यू कैन गेट, राइट. इफ एनीवन वांट्स टू नोट इट डाउन. Sir, PDF आता है इसका. पीडीएफ तो आता है, बट इफ यू वांट टू नोट समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई. जो -3ct square कितना है? कहाँ पे? ये First equation. ये तो गिवन है ना. गिवन क्या है? हाँ, ये आया ऊपर t. हाँ 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 हाँ. तो टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है? टी रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है? एन इंटू टी रेस टू एन माइनस वन. एन क्या है? 3. टी रेस टू 3 माइनस वन, तो 3t स्क्वायर डेरिवेटिव हो गया. सी कांस्टेंट था, वो डेरिवेटिव के बाहर है, तो इसलिए आया -3c टी स्क्वायर. वो डेरिवेटिव से आता है वो. गुड. अदर थिंग इज पीडीएफ तो आता है, बट मैं यहाँ पे करते रहूं एंड यू डोंट डू एनीथिंग विल बी लिटिल ट्रबलसम फॉर यू, तो वो करना पड़ेगा. यस. अभी ये जो क्वेश्चन है दर्शन, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और बहुत इजी है एट द सेम टाइम. तो for the velocity time graph shown in the figure below, the distance covered by body in last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by it in all the 7 seconds. तो लास्ट के 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, ऐसा पूछा है. तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Triangle का square का trapezium. एग्जैक्टली. तो सबसे पहले आप ये एरिया निकाल लोगे. व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ बेस इनटू बेस इज 2, 3 माइनस 1, हाइट इज 10, राइट. 10 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 10. देन 20. या तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम अप्लाई करें तो भी चलेगा. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम फॉर्मूला? Half into. यस, तो वैसा भी चलेगा, बट एनीवेज दिस इज आल्सो सिंपल. 5 minus 3 is 2 and height is 10. This is 20. This is again 10, राइट. क्या पूछा है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड्स, तो s इक्वल टू लास्ट 2 बराबर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस s. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड्स? 10. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 40. तो कितना आ गया? 1/4 है ऑप्शन में. अब we can make a trick out of it, but that trick can be used only in some particular condition. टाइम एक्सिस में आप देखोगे 1 से 3 डिफरेंसेस 2, 3 to 5 डिफरेंसेस 2, 5 to 7 डिफरेंसेस, मतलब टाइम एक्सिस पे पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड है. करेक्ट. देन if I have, let us say, if I have a square, मान लो ये स्क्वायर है, दिख नहीं रहा, बट आई डोंट नो, ड्राइंग इज प्रीटी बैड. मान लो, दैट्स इट. ओके. अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया को 1 मान लेता हूं और मैंने अब ऐसा कर दिया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट? 1/2, 1/2. करेक्ट. अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको डायगोनली वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं. व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट हियर? 1/4, 1/4. So you have your answer now. ट्रेपेजियम कैसे बनता है? इस पार्ट को यहां उठा के रख देते हैं, करेक्ट.
So if I shift this part, I know that if I am making a trapezium by chopping 25% of square, then of course that is 25%, matlab basically this particular trapezium will be 1/4 of the total. हाँ तो फिर वो 1/4 ही आने वाला था without solving, just by looking at time axis 1357 area of trapeze, मतलब area of triangle last 2 सेकंड में this is 1/4 of total, right? तो ये क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व होता है, सिंपल है, दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग. सो आपने जो 1/4 किया लेकिन अभी उसको पूरे एरिया के साथ तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो पूरा एरिया करने के बाद ही हुआ वो 1/4 किसकी बात कर रहे हो आप? स्क्वायर का एरिया 1 लिया था. तभी आपने तो सिर्फ 1/4 की ना 1. नहीं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. मेरे पास एक कैडबरी डेयरी मिल्क का चॉकलेट था, बराबर. उसको मैंने पहले हाफ किया, फिर हाफ का और हाफ किया, और वो एक हाफ आपको दे दिया मैंने. आई एम गिविंग यू हाउ मच? 1/4. किसका 1/4? टोटल का 1/4 ना. तो टोटल एरिया का ही तो 1/4 है ना ये, समझा? वो 1/4 है लेकिन बाद में उसका रेशियो भी तो पूछा है. हाँ तो वो रेशो ही है ये. दिस इज रेशो, फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकंड्स टू दैट ऑफ टोटल. मेरे पास ये एक पैड है यहाँ पे, इस टोटल का एरिया मैंने 1 मान लिया, मैं ए भी बोल सकता था. हाफ a/2 इसका हाफ a/4, बराबर. a/4 डिवाइडेड बाय ए, नहीं a/4 डिवाइडेड बाय ए. टोटल ऐसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1/4 आएगा ना. तो बेसिकली व्हाट वेयर यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इज, ये जो स्क्वायर मैंने लिया था इसका एरिया अगर ए होता तो हर एक का एरिया a/2, फिर मैं इसको डिवाइड करता तो ये a/4 होता. फिर आप बोलते हैं कि ये a/4 बाय ए, क्योंकि टोटल एरिया बस ए, तो कितना आया? हाँ, तो मैंने पहले एरिया को ए को 1 ही मान लिया. हाँ तो फिर मुझे वापस से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड दैट ए इज 1. तो और वैसे भी रेशो है, रेशो में तो फ्रैक्शन ही आता है ना वो. क्लियर हुआ? Okay, no, not previous, khatam. So this many questions we were supposed to do from 1D motion. Now, as I told you, in the last more or less half an hour, we are going to start with motion in 2D, and in motion in 2D we will start with projectile motion. Okay, so in projectile motion I would like to know something from your side. Yes, what is projectile motion? What is projectile motion? बताओ, what is projectile motion? Motion of an object which is thrown by making some angle with the horizon. With the horizon. Good. So basically बहुत सिंपल सा केस है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इट कैन बी अ स्टोन, इट कैन बी अ बैट्समैन हिटिंग द बॉल, it can be a soccer player kicking a ball in air. So the idea is that you are giving some initial velocity to the object u, and this initial velocity will make some angle with respect to horizontal. और जहां से इसने मोशन स्टार्ट किया उसको मैं ओरिजिन ही मान लूंगा, राइट. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, करेक्ट. What will happen as this object is going up in the air, it is also experiencing gravitational force. It will go up to a maximum height and then it starts descending downwards. तो ये नीचे आना शुरू होगा, right?
जितना टाइम इसको ग्राउंड से ऊपर जाने के लिए लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, फिर ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब जितना टाइम वो एयर में था, राइट। अगर मुझे इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है, what do you mean by detailed analysis? That we want to know what will be velocity at some instant of time, what will be the position of the particle at some instant of time, what will be the maximum height, what will be the maximum horizontal distance, right? Correct. तो सबसे पहला हमको देखना होता है what are the forces acting on that particular object, what are the forces acting on this object? Only gravity. तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप स्टार्ट करते हो, देर आर 4 कंडीशन दैट यू अज्यूम। पहला, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। दूसरा, देर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तीसरा, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड। व्हाई? सोचो, एक बहुत ऐसा करते हैं हम लोग, ये अर्थ है, मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और दिस इज हाउ इट इज मूविंग। होता है ना, होता है, मिसाइल्स होता है, और अर्थ भी रोटेट हो रहा है। तो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट को हिट करना था, लेकिन मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया अर्थ का रोटेशन। तो आई वांटेड टू ब्लो ऑफ वन कंट्री इन वॉर, पर क्या हो गया, अर्थ की रोटेशन की वजह से वो मिसाइल कहीं और ही जाके हिट कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो निग्लेक्टेड व्हेन वी आर डूइंग, दिस इज प्राइमरी एनालिसिस। हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं that we are not considering effect of earth rotation. That means the maximum horizontal range is very small compared to radius of earth. Important है। Fourth point, height is also very small as when compared to radius of earth. Why? Why the height of the projectile should be small compared to radius of earth? Yes, acceleration due to gravity changes if you go up or if you go down or if you move across earth। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपकी बात चल रही है, मतलब g की वैल्यू मोर और लेस हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ। Under these 4 conditions, you will be studying projectile motion. Okay, good. Then, as you rightly said, the only force acting here is gravity, and gravity is always towards the center of earth. मतलब जब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, gravity will try to pull it down. मतलब force is only in the vertical direction, right? If you remember Newton's second law of motion, what was second law of motion? Formula, mathematical formula. dp by dt is force, या फिर F equal to ma, ma। तो जब जब फोर्स है तब तब एक्सेलरेशन होगा या फिर डी एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कौन से कंपोनेंट का होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। मतलब स्पीड कौन से कंपोनेंट का चेंज होगा, वर्टिकल। मतलब फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, जब भी आपने प्रोजेक्ट किया सबसे पहले आपको वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट की बात करनी पड़ेगी। Why? Because we need to know precisely which component is changing. If you want tea, it's okay, right? So at any point, x component of velocity is constant. Why it is constant? No force in the x direction. y component जो है velocity का वो छोटा छोटा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। It is becoming less and less and less, and at maximum height, let us say point B, 0. Only component is x component.
फिर जब नीचे आएगा वापस तो अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव डायरेक्शन. So at the final point, let us say some point C, I don't know, whatever, जो भी बोलोगे, at point C again it has uy equal to u sin theta but in opposite direction, मतलब with the negative sign, and here it is again ux equal to u cos theta. ये तो change ही नहीं होता है. So this is the first thing that you should know when studying projectile motion. क्योंकि अगर ये नहीं पता तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं निकाल सकते. बाय द वे, द ट्रैजेक्टरी दैट दिस प्रोजेक्टाइल फॉलोज, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं. द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज ट्रैजेक्टरी. राइट. सो नाउ वी वांट टू आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन. क्योंकि ये मोशन y और x में है, मतलब there's a relation between y axis and x axis. y is a function of x. तो मुझे ये पता करना है whether y is equal to mx plus c minus mx plus c, y equal to mx square, y equal to mx square plus mx something something. तो what is the exact relation between y and x? मतलब I am asking what is the equation for trajectory of this projectile. क्योंकि any motion will have a equation. For example, यहाँ पे घड़ी चल रही है, घड़ी का काटा है, it is making circular motion. At the tip of any hand, let us say seconds hand, उस पे मैंने टिप पे मतलब फाइनल पॉइंट पे एक पार्टिकल रख दिया. वो पार्टिकल क्या कर रहा है, क्या करेगा वो? Does it have a equation of motion, equation of trajectory? What is equation of a circle? X square plus y square equal to what? If you have a particle, circular motion is two-dimensional motion. वो आगे आएगा, कल आएगा वो. Any particle which is moving along a circle, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हो? x square plus y square equal to r square. ऐसे लिखते हो. कहाँ से आया? Okay, I will go into basics, don't worry. हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कल पे है कहीं पे और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. So I have a particle which is performing circular motion at point A. जब मैंने देखा तब A पॉइंट पे था और तब उसके कोऑर्डिनेट्स थे x y. बाय द वे, आप इसको x2 y2 भी बोल सकते हो, आप सेंटर को x1 y1 भी बोल सकते हो, बट फॉर सिंपलिसिटी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ओरिजिन मान लो सेंटर को. फिर ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, क्या बोलते हो इसको आप? रेडियस r. करेक्ट. डू यू रिमेंबर डिस्टेंस फॉर्मूला? r is equal to distance formula. How do you find distance between two points A and B जिसका coordinate x1 y1 और x2 y2 है? How do you find out distance formula? x2 minus x1. You are telling me equation of straight line, that is slope. 1 by slope, x2 minus x1 upon y2 minus 1 by slope. किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है टू डायमेंशन में. थ्री डायमेंशन में z2 माइनस z1 स्क्वायर. ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या? xy. मतलब मेरा ये x2 y2 हो गया, तो r इक्वल टू x2 मतलब x और x1 को क्या लिखा है मैंने? ओरिजिन है 0 स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस 0 स्क्वायर. करेक्ट. तो क्या आया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई. अभी इसका स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. राइट. गुड. एनीवेज दिस वी विल नीड एनीवेज इन टुमारो सेशन. तो सिमिलरली ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन ने ट्रैजेक्टरी फॉलो किया है इसका भी एक इक्वेशन होगा, मतलब y और x का रिलेशन होगा. तो हाउ डू यू
फाइंड दिस रिलेशन, पता होना चाहिए, ईच स्टेप इज इंपॉर्टेंट। हम बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन को, टू डायमेंशनल मोशन है ना ये, हम इसको स्प्लिट करते हैं इन टू वन डायमेंशनल मोशंस, एक अलोंग एक्स एक अलोंग वाई, और हम लोग वापस से काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर मैं x में बात कर रहा हूं डिस्टेंस की, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, करेक्ट है? राइट। बट एज आई टोल्ड यू, ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रहा था? फोर्स नहीं था, मतलब एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन में मतलब ax is 0. Therefore you will have what? X equal to just ux t. And what is ux, by the way? U cos theta. Equation number 1 and 2. Similarly, for y is equal to uy t plus 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 प्लस की माइनस, अरे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, नेगेटिव माइनस हाफ जी, मतलब बेसिकली अगर आप स्टेप बढ़ाने के लिए बोलोगे तो मैं ऐसा लिख दूंगा, फिर मैं बोलूंगा बट ए वाई इक्वल टू नेगेटिव जी, तो y इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बट वेट अ मिनट, आई डिड नॉट गेट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, मुझे तो y और t का रिलेशन मिला, बराबर। हाँ, पर लेकिन ऊपर इक्वेशन 2 से मैं लिख सकता हूँ ना, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इस t को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा एंड दिस इज x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये u तो गया, फिर आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। By the way, this equation is what type of function? Is it a straight line? Is it a hyperbola? Is it a circle? Is it a parabola? What is this? Parabola. Quadratic equation है वो. It is a parabola and the vertex of parabola is not at origin. जो कल हमने लिखा था y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर, उस केस में वर्टेक्स मतलब ये जो बी पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, राइट? दैट इज, मुझे और एक चीज बतानी पड़ेगी बिकॉज आई सी मैथमेटिक्स नहीं याद है आपको। लेट्स लिव इन रियलिटी। रियलिटी इज यू डोंट रिमेंबर मैथमेटिकल फंक्शंस। वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ एंड देन आस्क यू, क्योंकि मुझे ये पता करना है। नो स्ट्रेट लाइन, मुझे ये जानना है आपसे दैट व्हाट टाइप ऑफ equation can be used can be used to represent this parabola. What is the equation of this? नहीं 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 नहीं, there are 4 types of parabolas. वर्टेक्स एट ओरिजिन है ये भी, चारों का वर्टेक्स एट ओरिजिन ही आता है। बटरफ्लाई एक्स कैसे याद रखते हो? यू नो कैसे याद रख सकते हो इस चीज को? ये जो पैराबोला है, आई मीन दिस वन, कौन से क्वाड्रेंट में है?
फर्स्ट और राइट. Can I write y square equal to kx for this? Can I write y square equal to kx for this? It is equal to ky square. तो वही तो बात हो गई ना, x equal to ky square. देखो, what I do to remember is, पहले ऐसे तो पैराग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ. समझा ट्रिक? ये x दिखता है क्या, ये दो पैराबोला x रेज टू 1, मतलब ये दोनों पैराबोला में x रेज टू 1 आएगा, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू kx है यहाँ पे, और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx है. करेक्ट. प्रोवाइडेड वर्टेक्स कहाँ पे है इसका, ओरिजिन पे. वेरी गुड. जब वर्टेक्स मैंने ऊपर या नीचे शिफ्ट किया तो मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं तो प्लस समथिंग लिखूंगा और नीचे शिफ्ट कर रहा हूं तो माइनस समथिंग लिखूंगा. राइट. अब इफ आई हैव अनदर पैराबोला like this or like this one, मान लेना आप. ओके. राइट. So definitely, for sure, this is going to be x square equal to minus ky, क्योंकि नीचे माइनस माइनस, और this is going to be x square equal to plus ky. क्लियर? अब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो था वो ऐसा था, मतलब डेफिनेटली x स्क्वायर इक्वल टू, या फिर ये माइनस के को मैं शिफ्ट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू दिस. क्लियर? दिस इज द इक्वेशन फॉर अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज वेयर. कहां पे है वर्टेक्स, कहां पे है, ओरिजिन पे है. करेक्ट. हमारे केस में कैसा था, ऐसा था क्या, मतलब ओरिजिन से ऊपर शिफ्टेड है क्या, तो प्लस समथिंग होगा क्या, प्लस होगा ना, होना चाहिए. गुड. तो व्हाट यू कैन डू इज, इफ आई गो टू प्रीवियस पेज नाउ, you will notice this thing here, plus a value, क्योंकि x स्क्वायर में नेगेटिव आ गया ना, x टू द पावर 2 में नेगेटिव आ गया, राइट हैंड साइड पे y आ गया, तो कंपेयर y पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड, x स्क्वायर के साथ नेगेटिव, x स्क्वायर के साथ नेगेटिव. यस, लेकिन हमारा ओरिजिन कहाँ था, शिफ्टेड इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे प्लस. राइट. So this is what? A parabola. तो ट्राजेक्टरी इज पैराबोला. क्यों बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. द ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज, अरे वो हाफ सर्कल लिख के आते हैं स्टूडेंट. हाउ कैन यू इवन से दिस इज हाफ सर्कल. आई एम सॉरी, बट दैट इज नॉट हेमिस्फीयर, दैट इज नॉट हाफ सर्कल, दैट इज नॉट हाफ इलिप्स एज वेल, इट इज पैराबोला. देन यहां तक हो गया. तो नाउ it is required for you to always remember this equation, x tan theta minus minus क्या था, g x square to u square या u, t square था, बट t क्या था, what was t, x upon u cos theta, मतलब t स्क्वायर होगा तो x का भी स्क्वायर होगा, u का भी स्क्वायर होगा, cos का भी स्क्वायर होगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके, एक बार वेरीफाई कर लो है क्या, नीचे यू स्क्वायर. यस. अब नोट इट डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन लिखना है ना, लिख लो लिख लो.
तो ये इक्वेशन है। गुड। नाउ ये इक्वेशन याद रखना डिफिकल्ट है। यस, क्योंकि और बहुत सारे इक्वेशन याद रखते हैं, तो स्टार्टिंग यही। अब ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन था, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। कुछ वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम हुआ होगा, उसको बोलते हैं एच। हमको इसका भी इक्वेशन चाहिए, हमको आर भी चाहिए। देन हमको टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी चाहिए, मतलब ओरिजिन से मैक्सिमम तक, मैक्सिमम से वापस ग्राउंड तक। तो बाय द वे, हाउ डू यू रिमेंबर दिस इक्वेशंस? आर का इक्वेशन, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो बाय द वे, टाइम ऑफ एसेंट इज अ टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ओरिजिन टू मैक्सिमम हाइट। क्या आता है ये, याद है क्या? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर इफ यू रिमेंबर दिस। नहीं, अच्छी बात है। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर थिंग्स। क्यों? मैंने पहले भी बताया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। काइनेमेटिक्स ही यूज करना है। मैक्सिमम हाइट मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिकल एक्सिस की, y ना। तो v एट मैक्सिमम हाइट कितना होता है? 0, क्योंकि बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट y कंपोनेंट्स। ओके, तो ये आ गया 0, 0। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी इन y, u sin theta। एक्सीलेंट। व्हाट वाज ay? एंड दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। तो ये आपको मिल जाएगा यहां से, टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। और हम लोग अर्थ पे हैं, और हमारे यहाँ पे ग्रेविटी यूनिफॉर्म होता है, मतलब ऊपर जाते टाइम भी सेम ग्रेविटी, नीचे आते टाइम भी सेम ग्रेविटी। मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी एग्जैक्टली सेम। तो टोटल टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ descent will be 2u sin theta by g. Right? It has to come in a natural way. थोड़े दिन प्रॉब्लम होता है जब मेरे पास क्लास लगाते हो, क्योंकि आई विल मेक यू थिंक। ये रट्टाबाजी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम नहीं होगी। आई एम सॉरी बट दैट इज हार्श ट्रुथ। गुड। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इक्वेशन फॉर आर? याद है ना आर? क्या था आर? हॉरिजॉन्टल रेंज। If I ask you what is the equation for horizontal range, कैसे करोगे? हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब डिस्टेंस का कौन सा कंपोनेंट का हम बात कर रहे हैं? x. There is only one equation, only one, which gives you relation between okay, so if I use s equal to ut plus half at square, ये हमने ऑलरेडी यूज करके रखा है। याद है क्या आपको? मैंने बोला था ax 0 होता है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे sx इज इक्वल टू ux, बराबर, करेक्ट? तो ठीक है, आई विल गो वन स्टेप बिहाइंड, ut प्लस 1/2 at square। तब मैंने सिर्फ
x इक्वल टू यू एक्स टी लिखा था, एंड आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आई वॉज सेइंग कहीं तो होगा उस टाइम पे x डिस्टेंस कवर किया होगा, कहीं पे मतलब पार्टिकल यहाँ पे है. व्हाट इज दिस x? व्हाट वाज दिस x? x इक्वल टू यू एक्स टी, बराबर ना. लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम. तो मैक्सिमम s की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? r. u की जगह पे तो ux ही आएगा. व्हाट विल बी t? जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, स्टार्टिंग से एंड तक टाइम ऑफ फ्लाइट, बाकी तो जीरो है. करेक्ट. व्हाट वाज ux? u cos theta. What was time of flight? 2u sin theta by g. राइट. अब इसको लिखने के दो तरीके, एंड आई टेल यू द इजीएस्ट टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में पता है क्या करेंगे वो, दे विल टेल यू r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, है ना, sin theta cos theta by g, and they will tell you r equal to 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. तो बोलेंगे u square sin 2 theta by g. That is correct, no doubt it is correct, but we are smart people. हमको क्या करना है? मुझे नहीं याद रहता ये कहाँ पे sin 2 theta की sin square theta, कंफ्यूजन होता है. sin 2 theta या sin square theta ये कंफ्यूजन होता है. तो what I know is this is ux, this is uy, है ना, u sin theta uy था. तो I will better suggest you, and I myself prefer to write 2ux uy by g. अभी भूलने का काम ही नहीं है, तो ये याद रहेगा. टाइम ऑफ फ्लाइट याद रहेगा. टाइम ऑफ फ्लाइट भी ऐसे याद रहेगा. कैसे याद रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट? इसलिए अब मैं जाऊंगा पीछे टाइम ऑफ फ्लाइट पे. 2uy by g. This is time of flight. Okay. तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट क्या आएगा? uy by g. और ये याद क्यों रहता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, जब टाइम ऑफ एसेंट निकालते हो तो कौन से कंपोनेंट की बात हो रही थी? वर्टिकल कंपोनेंट. इन एनी वेज हमने स्टार्ट ही तो वहां से किया था, बोला था एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज 0. हाँ, तो फिर यहीं पे मैं ये यू वाई के लिए सब्सटीट्यूट ही नहीं करता, तो मुझे मिलता 0 इक्वल टू यू वाई प्लस मतलब माइनस जी टी टाइम ऑफ एसेंट. तो यहीं से मिल जाता मुझे टी ए इज इक्वल टू यू वाई बाई जी. तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट विल बी 2 यू वाई बाई जी. तो सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है. तो आर में गया. व्हाट इज रिमेनिंग? मैं ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूं, बिकॉज दिस अलॉट हियर. हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पर बेसिक्स पता होना चाहिए. वन मोर थिंग दैट आई वांट फ्रॉम योर साइड is this. For example, just let us say the particle is somewhere over here during its motion. A point पे है, B जो भी नाम दोगे. Now मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट. इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? A vector drawn from origin to a given point is which vector? Position vector. तो पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा, ये r बार हो गया मतलब, do we write position vector as r bar equal to x I cap मतलब x component of displacement plus y component of displacement मतलब yj cap. Right, correct. At any instant of time particle कहीं तो है a पे. Can you tell me what is the displacement vector measured from the origin मतलब position vector of that point? कैसे निकालोगे? अभी तो आपने ही बताया ना. I did not tell you anything. आपने बताया x is uxt. क्यों? s equal to ut plus 1 half at square. At is 0 for x. So you have told me already I cap plus y. y क्या आएगा? uyt plus
plus half ay t square j cap. Why? Because this acceleration जीरो नहीं होगा. वेरी गुड. अभी यू एक्स यू वाई ए वाई सब पता है हमको, सब पता है, सब कुछ पता है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दो. तो दिस इज u cos थीटा t i cap प्लस u sin थीटा t माइनस g बाई 2 t स्क्वेयर j कैप. ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यही होना चाहिए. मैंने तो देखा नहीं इसको 2-3 साल से, बट ये होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ राइट है. दिस इज व्हाट इट इज. अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट measured from the origin. How do you measure distance और magnitude of displacement? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट. हाँ, तो अगर आपको डिस्टेंस पूछा है, आर पूछा है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करते करते कहां पे आ गए हम लोग? u cos थीटा t बराबर स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस g बाई 2 t स्क्वायर का स्क्वायर. ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस. राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू cover is, okay, we have few more minutes. Okay, I want to know what is instantaneous velocity. Instantaneous मतलब पार्टिकल उसके ट्रैजेक्टरी में कहीं पे भी होगा, मुझे उसका वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए. How do you find out instantaneous velocity? What is v bar in terms of component? vx I cap plus vy j cap. But what we know is vx और ux सेम है. क्यों सेम है? vx और ux सेम है ना? क्यों सेम है? along x फोर्स था क्या? हाँ, तो ये चीज तुमको अभी दिमाग में फिट बिठा लेनी है. कभी भी यहाँ पे vx और ux will be same in projectile motion, so we don't worry about this thing now. Our problem is this: uy plus ayt j cap, and we already know this is u cos theta बराबर, this is u sin theta minus g t j cap. ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तो दैट यू नो कैसे निकालना है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. इज दिस अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर. देन माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर. डायरेक्शन मतलब हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शन फॉर अ वेक्टर? tan थीटा. मैं मान लेता हूं थीटा मैं नहीं यूज कर सकता. क्यों नहीं यूज कर सकता? व्हाई कांट आई यूज थीटा? क्योंकि थीटा जो था वो इनिशियल एंगल था. अभी इस स्टेज पे मैं मान लेता हूं सम एंगल फाई, समथिंग, सम न्यू सिंबल, डजंट मैटर. हाउ फाई अल्फा जो भी यूज करना होगा आपको, डजंट मैटर. व्हाट इज tan ऑफ फाई? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट. व्हाट इज y कंपोनेंट? ये थीटा है. u sin थीटा minus gt upon x component is u cos theta. So this is the direction at any instant, and the magnitude of v gives you the speed at any instant. तो velocity में magnitude मतलब speed और direction at any instant of time. Right. Now I want to know what is the change in velocity, क्योंकि origin पे velocity की वैल्यू कुछ अलग थी, ए पॉइंट पे कुछ और है.
what is the change in velocity? So I want to find delta v. अब डेल्टा v फाइंड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बोलते हैं लेट्स फाइंड चेंज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट, मतलब मैक्सिमम हाइट और ओरिजिन पे। नॉर्मली दे से दिस, तो बुक्स में ऐसा ही दिया होगा, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। चेंज इन वेलोसिटी, ये सबसे सिंपल है एक्चुअली। चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन point of projection and highest point what was, हाँ बोलो 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 बोलो, how do you find out this thing? 0 minus what? चलो ठीक है, तो to be continued because it is 12 and I have another meeting in 15 minutes today. So this thing you should do yourself, easy है। x is not changing, ux तो change नहीं होगा, तो change कहाँ आएगा, सिर्फ y में। हाँ तो vy minus ui in simple। तो we'll stop here।